सबसे पहले शिल्पा मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पठान फिल्म बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, कई सारे रिकॉर्ड्स बना रही है। बेशरम रंग मिलियंस ऑफ व्यूज, अपना खुद का उसका एक रिकॉर्ड है। सो हाउ एग्जैक्टली डिड दिस सॉन्ग हैपन? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस सॉन्ग? The story behind the song comprises of three names: Siddharth Anand, Shekhar and Vishal. ये हमारी 5th फिल्म है साथ में एंड जब भी हम साथ में काम करते हैं देयर इज़ ऑलवेज द एफर्ट टू मेक अ गुड सॉन्ग. It's not about the number of hits or number of likes or YouTube views or something, but to make a good song. That's our first and foremost thing. Apart from a lot of food, coffee and bad jokes. That's a very much needed concoction actually. So why do you think कि इस गाने ने इतना अच्छा क्यों परफॉर्म करा? ये मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है गाना. क्या लगता है वो क्या एसेंस है इस गाने के अंदर कि इतना अच्छा करा इस गाने ने परफॉर्म? एक तो आई थिंक जब भी हम साथ मिलते हैं हम कुछ एक नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो जो हमने कभी पहले नहीं किया, ना विशाल शेखर ने, ना सिद्धार्थ ने, ना मैंने. सो दैट one thing, that fearlessness to do something new, I think that probably caught people's eyes and their attention, and I think the simplicity. कुछ उसमें, I mean it was just a very simple song. I think that probably something that you can sing along. That's true. I think it's a very important part of making a good song which is popular. So खुदा जाने से लेकर बेशरम रंग, this is your 4th successful collaboration with Deepika. Yes. So yes. is it safe to say that you for her and she for you? Very lucky. Bro, it's more than luck actually. हम लोग studio के अंदर we take care of the audio, and when she goes to shoot she takes care of the video, so it's half and half. So yeah, I think we share the load between each other. Yeah. आपकी जिंदगी इस गाने के बाद कैसे बदली है, या how are things changed for you after बेशरम रंग? I think there are a lot of songs that sometimes you feel ये मेरे लिए बहुत meaningful था, but commercially doesn't work. For example, just one film before that, Lal Singh Chaddha, I did Tere Hawale. That song was really something very special for me because I always feel कि जब आप इबादत करते हैं या मोहब्बत करते हैं उसमें ख़ास फ़र्क नहीं होता है, वो सेम होता है. और उस गाने में वो बात थी. और प्रीतम, अमिताभ, अरिजीत, myself, Advait Chandan, who is the director, Amir, we knew that it will reach people's hearts, and sometimes it doesn't commercially become very big. But again, so you learn something with all these successes and failures up until बेशरम रंग is that हमारे हाथ में जो होता है ना, वो स्टूडियो के अंदर हम जो करते हैं वो हमारे हाथ में होता है. Especially having fun. You should, because after doing this for 5-10 years, you go on an autopilot and you forget the first person who wanted to do this and what was your first reaction कि मुझे म्यूज़िक करना था because मुझे इससे खुशी मिलती है, and मेरा सपना था कि मैं बॉम्बे आऊँ, गाने बनाऊँ, अच्छे लोगों के साथ काम करें, and वो finally हो रहा है. So why should I just ruin that moment thinking of whether it'll be a commercial hit or not, etc., etc. So I've stopped thinking of those kind of things. I'm in the studio, I work with people, I have a great time. Once the song is out, it's in your hands. I don't think we have any control on that. Yeah. शिल्पा, जब कोई एक गाना सुपर डुपर हिट होता है, कितना क्रेडिट एक सिंगर को मिलता है? डू यू थिंक दैट एक सिंगर को ड्यू क्रेडिट मिलता है, या मैक्सिमम जो फेम है और क्रेडिट है वो एक्टर्स ले जाते हैं? बिकॉज चेहरा उनका दिख रहा है, आवाज़ आपकी है. सो इज़ इट फेयर टू से कि एक सिंगर को उनकी ड्यू जो पॉपुलैरिटी है वो मिलती है? Of course. I don't think आप किन्हीं को भी पूछ लें. Also एक और भी बात है,
सिंगर्स का ड्यू हम आजकल ना वो लॉन्जेविटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज you come with one hit and then you're gone. I'm looking at someone who's done work consistently for maybe 10 years, 15 years, 20 years. It takes time to make a mark. Okay. So that's when you start getting the due that, yeah, I hear this voice and this is this particular singer, and then you start looking for that person. So I think to even take that responsibility as a musician, you need to do that considerable, consistent good work to be able to make that mark and to be able to stand the test of time. It's important. Yeah, yeah. भाई हम जिस आवाज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम जिस गाने के बारे में कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ओनली फेयर अगर एक बार हम शिल्पा को बोले टू सिंग बेशरम रंग. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, anyone who's singers in the house? Any yes, singer? Yes, singers in the house. I think Hi. I think Shobna ji is also a singer. Of course. वो आप न्यू समझ के गा लें. ओके, तालियां तो हो सकते हैं. ओके, हियर वी गो. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने. थैंक यू. ये जो इतनी सुरीली आवाज़ है, इसके पीछे कितना रियाज है? एक्चुअली नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक नींद इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फंक्शनैलिटी कि आप गाना गाते हो या न्यूज़ पढ़ते हो या जर्नलिस्ट हो या एथलीट हो, कुछ भी. आई थिंक वी स्टॉप्ड sleeping properly. I think and I see some people taking pride. I'm working with only 3-4 hours of sleep. There's nothing to be proud of. Please sleep well. जब सो के उठते हैं ना तो आवाज़ भारी रहती है. अच्छा खरज का रियाज करिए. And don't strain your voice. मुझे लगता है कि एक आवाज़ सब कुछ नहीं कर सकती है. Understand your limits and sing something that you feel for. I think these are some things I do. I'm a very lazy person. I don't have many thoughts. I lead a very simple life. Work hard and party harder. वेरी गुड. शिल्पा, आप काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स भी करती हैं. कोई रिचुअल है आपका टू डू बिफोर द कॉन्सर्ट? कुछ एक ऐसी चीज़ जो मे बी आपको लगता है कि ये करूँगी तो कॉन्सर्ट बहुत अच्छा जाएगा? साउंड चेक. वो गुड साउंड चेक. ये रिचुअल नहीं है, ये इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि हम दो चीज़ों पे बहुत रिलाई करते हैं एंड वो ना वी प्रे दैट ये दो चीज़ें सही हो. जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ एंड यहाँ जिन्होंने भी माइक सेट किया बहुत सही किया है. साउंड इज़ एक्सलेंट हियर. सो दिस इज समथिंग विच वी वेरी अफ्रेड ऑफ विद द साउंड. एंड द सेकेंड इज दैट तालियां बजती रहनी चाहिए, लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए. वो हो जाए वी आर सॉर्टेड. ये दो चीज़ हो जाए like of course that's what we are here for. मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता था कि सिंगर जो एक चीज़ की बहुत तमन्ना करते हैं वो गोलगप्पे होते हैं. तो गोलगप्पे और आपके बीच में फुचका सब कुछ मैं सब खाती हूँ. सब खाते हो? सब खाती. आवाज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आई थिंक ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो, बिकॉज गाने से ज़्यादा प्यार है. सो समटाइम्स आई थिंक छोड़ देना चाहिए. बट जो हो सकता है करिए. अगर सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट. सो दैट्स ऑल. सो ऑडियंस से अभी आ रहा था गाना गाना, तो मैं अभी जब शिल्पा से बात कर रही थी मैं उनको कह रही थी कि एक उनका ऐसा गाना था जो मतलब मेरे दिल को छू गया. रील्स में बज रहा था पीछे बैकग्राउंड में और मेरा ध्यान इतना ज़्यादा गया उस गाने पर कि मैं इमीडिएटली उठ के मैंने बोला कि ये किसकी आवाज़ है, और वो गाना था कलंक का. That's a very बहुत अच्छा गाया. उसमें पीछे कोई म्यूजिक नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज़ थी और गजब.
थैंक यू, थैंक यू. तो अगर आप प्लीज़ एक बारी यहाँ की ऑडियंस के लिए, मेरे लिए, सबके लिए गा देंगी. That's what we live for. Okay, here we go. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया. जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी, तू मेरा पागल पिया. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राझा और हीर जैसी. न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मतलब No, मेरा it's- पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है ये. ऑलरेडी आप इतनी, डिटो मेरा भी. आपका भी. चलो हाई फाई फॉर दैट. सो इतना अच्छा ऑलरेडी गाती हैं. एक सिंगर आगे और कैसे ग्रो करता है? जो ऑलरेडी इतना अच्छा गा रहा है, वो आगे जाकर क्या क्या स्कोप रहता है फॉर ग्रोथ? The only thing I know is that there is still so much to learn. And ये एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि क्या होता है ना, आप कुछ गाने गा लेते हो एंड देन यू फील यू नो दिस इज सॉर्टेड, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर. बट द थिंग इज टू बी मोटिवेटेड इवन व्हेन यू आर डूइंग वेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. क्योंकि जब आप नए होते हो ना, यू आर लुकिंग फॉर दैट ब्रेक. आप में वो कुछ भी कर गुजरने की एक उम्मीद भी रहती है और एक Zest होती है. ताकत भी रहती है अंदर से. और वो ताकत फिर क्या है ना, सक्सेस के साथ कभी कभार वो स्लिप होता है. एंड यू नो वी कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर वी हैव सच ग्रेट म्यूजिशियंस. बेगम अख्तर जी, प्रभा अत्रे जी, सुरिंदर कौर जी, MS सुब्बलक्ष्मी जी, राशिद खान साहब, आमिर खान साहब. आई थिंक वी हैव सो मच. सो वेन एवर आई कम बैक होम, अगर वो दिन बहुत अच्छा गया या दिन बहुत ख़राब गया, वेन एवर आई लिसन टू देम, you feel that there's so much more to do. And I think that is my inspiration to keep moving on. And अच्छा, मुझे सब आता है. ये कितनी डल सी बात होगी ना, अब कल आप क्या करेंगे? पर आपको कभी प्रॉब्लम हुई है कोई एक पर्टिकुलर किसी टाइप का गाना गाने में आपको लगा है कि ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे इसको प्रैक्टिस और करनी है? कलंक I recorded for 3 months 12 times. So कोई भी गाना आई डोंट थिंक वो एक ड्राफ्ट में बन जाता है. दैट्स नॉट पॉसिबल. इवन प्रीतम, यू नो, शिल्पा, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट, अमिताभ इसको लिख रहे हैं ये. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट्स दैट गो फ्रॉम द फर्स्ट ड्राफ्ट टिल यू हियर इट. सो देयर इज अ लॉट बिटवीन in between that has to be worked on. And फिर आप उसको फिर 4 चांद लगा देते हो बहुत सारा प्यार दे करके. सो या मेहनत कंप्लीट हो जाती है हमारी. यस. शिल्पा, आप काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. अगर आप एक एडवाइस, जो भी आप सिंगिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू देम, व्हाट वुड दैट बी? डू म्यूजिक एज इफ देयर इज नोबडी और नथिंग अराउंड यू. जब मैंने गाना सीखना शुरू किया था, आई डोंट थिंक उस टाइम पे फ़ोन्स भी थे. There was no internet, there was no Wi-Fi, there was no social media. I only did music because I was happy singing. So अगर आप सोशल मीडिया के लिए गाना गा रहे हो, तो अगर कल को नहीं रहा तो आप गाना छोड़ दोगे क्या? I don't think that's a great purpose. आप अभी भी क्वेश्चंस पूछती हैं ना, बिल्कुल. कल कुछ भी हो, you will keep doing that. So I think that is what you need to do music for. Do it for yourself first. अगर आप खुश होंगे तो फिर आप जिनके लिए गाएंगे वो भी खुश होंगे.
एक पीस ऑफ एडवाइस जो किसी ने आपको दी जो बहुत अच्छी थी और एक ऐसी जो मतलब बहुत ही बेकार थी. Piece of advice, my dad always keeps saying कि you don't have to stress it. Mental peace is the most expensive thing. तो आप कुछ भी उसके लिए दे देंगे वो कम ही पड़ेगा. So mental peace. And सबसे खराब advice is that क्या? Like the worst advice that The you worst would have ever advice. अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो. I think you should be your own conscience keeper because you are in your seat. Nobody else can take that That's seat true. right now. So you have to choose what is good for you, what is bad for you, what predicament you are. For that, you will make an informed decision. I don't think anybody else can take that place. So be your own conscience keeper. Yeah. शिल्पा अभी हम इस मंच पर हैं. What is your idea of India? My idea of India is that we have so much diversity and we are together because of India. And that is my favorite part of India. आप कहीं से भी आए हैं, आप कोई भी भाषा बात कर रहे हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप कुछ भी कपड़े पहनते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, but हम इंडिया से हैं. And that is a proud moment for me that I'm from this country. That's it. Very well said, very well said. And I think time की कमी है, हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार और before going, just one more song for the audience. I think you should really clap and encourage her. Okay. Could it be Tosin है ना? No, I'll sing something जो ये पूरी इंडिया को ये गाना पता है और कोई भी इंडियन कहीं भी दुनिया में उनको उसको ये गाना पता होगा पक्की बात. ओके गाएंगे आप साथ में दिस वन लास्ट वन. ओके हियर वी गो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो. Thank you guys. Thank you so much. Have a great night. Thank you so much.